friends, welcome you all on behalf of ATF, AHC, and BNI in this platform of Zoom and live Facebook. Today, I'm here with the personality जिन्होंने जो ड्रीमर थे और आज वो अचीवर है और उनका लाइफ का फिलॉसफी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हिज हिस्ट्री सो देयर आर टू लाइंस व्हिच आई वुड लाइक टू से अबाउट हिम इज सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। कुछ ऐसी ही शख्सियत को अपने साथ लेकर आई हूं मैं आज। अंजू सैनी, लाइफ कोच, काउंसलर, ट्रेनर, NLP practitioner and clinical hypnotherapist. But before we start, friends, I would request during this session, please keep your mics mute. And if you have any questions regarding whatever we will be sharing, sir will be sharing with us, please you can write them on the chat box, and at the end of the session, we will go through the question answer sessions also. So I really welcome Bimal sir, the Executive Director of BNI. He is with us. It's my privilege that I am face to face with him today. So when I was reading your profile, I thought I will read it myself. But your achievements were so high and I was feeling so small within that self. I thought, why not? I want to listen all that from you itself. So, sir, हम लोग शेयर करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर चाइल्डहुड, बिकॉज मैंने देखा आपको स्टोरी को, अगर मैं गलत नहीं होंगी बोलना, फ्रॉम जीरो टू हीरो, दैट जर्नी. एंड with ATF we had one today commitment that we will having the interview with a celebrity, and there was only one word in my mind: who are celebrities? Celebrities are one who are born, and every day when they achieve, they celebrate their every moment and they become celebrity for themselves. And I heard him in one of the functions in our award ceremony where he shared his little story, and from that day itself that thing was in my mind, that self-made men are the best celebrities in this world, in their life and in others' life, because not only they get aspires but they get inspires others too. So over to you, Bimal sir. Let us start from the very beginning. Let us tell me about your childhood. I'm very curious to know, because जो स्टोरी मैंने सुनी थी वो अभी तक मेरे माइंड में, I want other people also to know about it. सबसे पहले तो मैं अंजू जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, and to the entire ATF team for churning out these wonderful initiatives, because more than any the word celebrity is coined pretty well. But I would see in a different perspective that whenever you get people who have seen some success, people around them tend to learn a lot from them. That's the biggest take for me. And I often tell people, learning leads to earning. The day you stop learning, you actually stop earning. So you continue to learn because it helps you in two ways. It enhances your capability, and it also allows you to do much better than what you're doing currently. और मैं इतने अच्छे शब्दों का आपने जिस तरह से मेरे को लोगों के सामने पेश किया अंजू जी, ये आप लोगों का बड़कपन है. मैं आज भी वही साधारण इंसान हूँ. कोशिश करता हूँ कि अगर if I can add some value, some value in people's life, touch their lives, that is my biggest achievement. तो आपने जो सवाल पूछा चाइल्डहुड डेज का, बड़ा टची सब्जेक्ट है थोड़ा, और मैं इसको अगर मैं शेयर करूंगा तो आई माइट टेक आवर्स टू शेयर, बट आई एम जस्ट वांटिंग टू होल्ड मेनी स्टोरीज ऑफ माइन सो दैट व्हेन आई इंटेंड टू राइट अ बुक, मे बी उस समय मैं उन सब स्टोरीज का इस्तेमाल करूंगा. अभी थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बताना चाहूंगा. आई वाज बोर्न इन अ विलेज, और विलेज ऐसा जहाँ पे कच्चा इमारत हुआ करते थे, जहाँ पे सड़क कच्चा हुआ करते थे, और जहाँ पे बिजली नहीं हुआ करते थे. मैं वैसे एक गांव में, उड़ीसा में एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था. मुझे तकरीबन अगर याद है, जब मेरा उम्र 3 साल का था, तो मेरे पिताजी, जो अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ आज के दिन, 28 फरवरी को गुजर गए. उन्होंने बड़ा साहस करके वहां से एक
महानगरी में आने का सपना देखा। एक्चुअली अगर आप देखें आज जो कुछ भी मैं हूँ उनका बलिदान है, उनका साहस है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ सब पहुंचे हैं। वो साहस करके वहां से एक महानगरी में आते हैं विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम। देखिए आज के दिन में इतने कनेक्टिविटी हो गए हम सब के कि हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन मेरे पिताजी जब आए थे उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। और क्योंकि हम एक गांव से आए थे तो शहर की एक बड़ी दुनिया में ऐसे खोए खोए लग रहा था हमको। तो पिताजी को किसी ने कहूंगा आज के दिन में बहुत अच्छा सलाह दिया कि आप अपने बच्चों को अच्छा परवरिश के साथ साथ अच्छा स्कूल में पढ़ाई कराइए। तो पिताजी का उस समय शायद उतना सामर्थ्य नहीं था हम सबको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, पर फिर भी वो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने साहस के साथ हमें जो बेसिक एजुकेशन था उन्होंने इस शहर में दिया। I am also lucky that fortunately I also have a friend of mine who's in this program. तो मेरे को कुछ चंद दोस्त मिल गए, राजेश मुंद्रा, मनीत सिंह, मनोज स्वामी, रवि घोषाल and couple of more friends who actually coming from a community from where I belong and from a village where I belong. These guys were pillars for me. They always pushed me. आज आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे बोलते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरे दोस्त इस बात को मानेंगे कि मैं बोल नहीं सकता था। I could never speak English. I could never speak Hindi even because since I belong to Odisha, so my mother tongue is Odia. So I was very comfortable in that language and I could never speak Hindi. Neither I could speak English and neither was my communication good in English. But thanks to these friends who always stood behind me, and more so, the journey started. Somehow I got an entry with the friend support and many well-wishers who came forward. And my first job, I started in an MNC. And 20 plus years in MNC has taught me many and more things, which has helped me become a better individual, become a better leader. And throughout my career, only two things I have able to, add to myself is how can I add value in people's life in whatever capacity I was, and how can I take this state and city to the top. I am one of the most, and I repeat, I am one of the most battered leaders. Why do I say battered leaders? Because when you compare India, East comes one of the most, bottom region in terms of aspiration, in terms of turnover. People talk about the northern market, people talk about the western market. So people from the east, they have to work 10 times more compared to the other regions. People from the east have to work 10 times more than the other region to get 1/10 of the result of the other regions. What a dichotomy. You work more and you get less, So with that mindset, that is how I set my foot across. That जैसे मैं हिंदी में कई बार बोलता हूँ, अंग्रेजी में कई बार बोलता हूँ, you want to be a part of the crowd or you want to be apart from the crowd. So if you want to be apart from the crowd, you should learn how to swim against the tide. हर व्यक्ति तो टाइड के साथ में तैर लेता है और बहुत आसान भी है और वो भीड़ के साथ में चलता है। वो व्यक्ति को लोग याद रखते हैं जो स्विम करता है टाइड के विपक्ष, उसे लोग याद रखते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मेरा वो पहला जॉब से मेरे मन में इतना मजबूती आ गया कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। And that has been my journey from that childhood to schooling to my friends and to the corporate world. मैं देखिए औरों की तरह ये बोलना नहीं चाहता हूँ because it is there. Family support के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पीस चाहिए, फैमिली वो है जो हमेशा, मैं तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ स्पाउस हु सो सपोर्टिव। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे कि पापा का काम है एंड दे एडजस्ट अ लॉट। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली हु सपोर्ट्स मी इन माय एंटायर जर्नी फ्रॉम दोस डेज टू नाउ। तो मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, जैसे कि बताया अंजू जी, मैं अगर बोलूंगा इसके बारे में तो कई शामें, कई रातें गुजर जाएंगे, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा।
बट मैं सिलसिला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। It's really nice, sir. I can understand. जब हम लोग पिछले तारों को छेड़ते हैं तो वो जो आवाज आती है ना, बहुत सुंदर होती है और दिल को छू के जाती है. I know, I can understand. But you said that आप वो बच्चे थे जिनके मुंह में जुबान नहीं थी, जो बोल नहीं सकते थे. He was not a good speaker. And I tell you, from last 5 minutes, what you said must have really touched the heart of the people. And I must share you with you, friends, the guy जो कभी बोलते नहीं थे, आज वो मेंबर, ही इज अ मेंबर इन फ्रेंचाइजी एडवाइजर कमेटी इन बीएनआई इंडिया. ही इज इंटरनेशनल स्पीकर इन ग्लोबल नेशनल कन्वेंशंस. ही इज डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ बीएनआई इंडिया एंड हैज सक्सेसफुली हेल्प्ड इन लॉन्चिंग न्यू रीजन्स in Bhubaneswar, Cuttack, Guwahati, Siliguri and Howrah. And he is a BNI Global Founder, circular member for the period 2017 to 2019. भगवान इसी तरह से I think सबके मुंह में वो शब्द डाले और वो यहाँ तक पहुँच सके. That's what's the inspiration. You have कुछ भी सोच लो, वो हो सकता है, बस वही जिद जरूरी है कुछ करके पाने के लिए. बट सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग. काम की बातों के बीच में कुछ एक ऐसी फर्स्ट अचीवमेंट आपकी जिसको आपको लगा या अब मैं रुकूंगा नहीं लाइफ में. योर वेरी फर्स्ट अचीवमेंट व्हेन यू केम टू सिटी, जब आपको फादर ने भेजा यहाँ पे. मतलब आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे. पता नहीं आपने कहाँ से ये सब रिसर्च किया है, क्योंकि ये सब सवाल ना मैंने आपको बताया है कि आप मुझे ये सवाल पूछे. बट देखिए, जब मैं अपना करियर शुरू किया ना, संडे ऑलवेज यूज्ड टू बी अ फन डे. लोग संडे में आराम करते थे, बट मैं उस संडे को अपना करियर डे मानता था. जब सारा दुनिया सोता था, आराम करता था, मैं दर जाता था. मैं भटकता नहीं था, दर जाता था अपना सामान बेचने के लिए, उस जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता था. और मजे की बात है, मेरी पहली जॉब में मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया था, और वो मार्च का महीना था. मुझे याद है, एंड दिस इज समवेयर अराउंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 1993. आई रिमेम्बर मार्च का महीना था, और हमारे एक जीएम आए थे दिल्ली से, उस समय गुड़गांव नहीं हुआ करता था, दिल्ली से आया था. एंड ही आस्क्ड द लोकल हेड हियर कि भैया मार्च में टर्नओवर क्या होगा. सो मैं यूनिट्स में समझाता हूँ. उन्होंने पूछा कितना यूनिट बिकेगा, तो उन्होंने बोला कि 500 यूनिट बिकेगा. तो उन्होंने पूछा मेरे को ब्रेकअप बताइए, कौन बेचेगा 500 यूनिट. तो उन्होंने बोला कि एक्स इतना बेचेगा, वाई इतना बेचेगा. ये कुल मिलाकर 300 हो रहा था. तो बाकी 200 कौन बेचेगा? ना वो विमल बेचेगा. तो विमल कौन है? वो हमारा अभी नौसिखिया मैनेजमेंट ट्रेनी है. अच्छा, आपके 6 लोग मिलकर 200 बेचेंगे, 300 बेचेंगे, जो इतने तजुर्बेकार है, और वो एक बच्चा लड़का वो 200 बेचेगा. There is something wrong. नहीं सर, वो बहुत बढ़िया बेचता है. मुझे याद है, मैं कभी 5 स्टार में गया नहीं था, और केनिलवर्थ उस समय बहुत नामचीन होटल हुआ करता था. मुझे वो शाम को बुलाते हैं, मैं उनको मिला भी नहीं हूँ. वो सिर्फ ऑफिस में नोट छोड़कर गए थे. उस समय सेलफोन नहीं हुआ करते थे कि केनिलवर्थ में मिलना. अब मैं केनिलवर्थ जाता हूँ, मैं स्कॉच भी नहीं जानता था किसे बोलते हैं. तो मैं एंटर करता हूँ उनके रूम में, वो बताते हैं स्कॉच लोगे या क्या लोगे. मुझे स्कॉच का मतलब समझ में आया तब ना मैं हाँ बताऊं. ओके, तो मैंने उनको बोला नहीं सर, मैं जस्ट पानी लेना चाहता हूँ. तो उन्होंने ना अपना एक छोटा सा ब्रीफकेस था, उससे एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हैं. क्योंकि मैं जब मैनेजमेंट ट्रेनी था तो स्टाइपेंड में काम करता था. आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पहली तनख्वाह थी 1500 रुपया, 1250 रुपया तनख्वाह, और 250 रुपया मेरा कन्वेंस अलाउंस हुआ करता. तो उन्होंने एक कागज निकाला अपने ब्रीफकेस से, और उन्होंने मुझे हैंडओवर किया, और मैं देखकर ना चकाचौंध रह गया. 1500 रुपया सीधा 15,000 रुपया हो जाता है. 15,000 देखकर मेरा वो जो खुशी था, मेरा वो जो रिएक्शन था, वो घबरा गए. क्योंकि मार्च का महीना बहुत क्रुशियल था. उन्हें लगा शायद ये छोड़ देगा. उन्होंने बताया कुछ प्रॉब्लम है क्या, और बढ़ाना है क्या. देखिए भैया, उस समय तो पहला जॉब था मेरा, मुझे इतना तजुर्बा भी नहीं था. मैं बोला ज्यादा, बहुत ज्यादा है. कहाँ 1500, कहाँ 15,000. यू नो, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट यू कैन से अंजू जी, जो मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ.
I can understand. Yeah, so sir, that was really nice. उस उम्र का वाकया जो आपने बोला, ये बच्चा कहाँ से इतना बेच लेगा, मैं जानना चाहूंगी उस बच्चे का फेवरेट हीरो कौन था सर? बच्चे का फेवरेट हीरो, ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे पापा फेवरेट हीरो थे मेरे लिए. बट अगर फिल्मी अंदाज में पूछे तो आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैन ऑफ अमिताभ बच्चन. और वो तो यूनिवर्सल हीरो है. मैं थोड़ा अनिल कपूर को बहुत पसंद करता था. वो भी थोड़ा मेरी तरह बाल वाले, सभी तो मेरे बाल नहीं है, मेरे जो दोस्त थे उनको पता था मैं बहुत ऐसे बाल रखता था, उनको फॉलो करता था. और वो तेजाब वगैरह पिक्चर में मैं भी थोड़ा कॉलर वॉलर ऊपर करके थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके चलने की कोशिश करता था. Okay. So any one dialogue or any one tagline जो आज तक आपको याद है और you always follow it? तो मैंने तेजाब पिक्चर का नाम लिया. उसमें एक विलेन ने बहुत अच्छा डायलॉग इस्तेमाल किया था जो मैं आज उसको अपने काम में पॉजिटिवली इस्तेमाल करता हूँ. तो विलेन का नाम है किरण कुमार और उनका नाम उस पिक्चर में था लोटिया पठान. अगर आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा. Yes, तो वो उसमें बोलता है, लोटिया जब देता है तो एहसान नहीं करता और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता. सो ये डायलॉग मैंने अपने कार्य में इस्तेमाल किया. इन द सेंस आई यूज्ड टू कोच पीपल, मेंटोर देम, यानी कि मैं देता हूँ और जब वो अकाउंटेबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं तब मैं जब उनकी लेता हूँ, मतलब मैंने टेक देयर क्लास. सो मैं बिजनेस में उसको यूज किया. जब मैं कुछ देता हूँ तो एहसान नहीं करता और जब मैं लेता हूँ तो लिहाज नहीं करता. That's really nice. That's really nice. So I would like to know, sir, जैसा कि आपने बताया you were on the job. So how this BNI platform came into your life? BNI कैसे आप उस तरफ कैसे आपका लाइफ में ये पैटर्न आया? देखिए मैं मतलब क्या बताऊं आपको, because I have always been into people business. And when I say people business, it's more about connecting people. So मेरा जो वर्क रहा है, it's more in telecommunication and insurance. मेरी जो 20 साल की एक्सपीरियंस है, it has been more in telecommunication companies like आज के दिन में जो वोडाफोन है, उस समय उषा मार्टिन हुआ करती थी, मैक्स लाइफ है, तो काफी MTS मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है. ये लोगों को जोड़ता है, इंश्योरेंस लोगों को जोड़ता है, फोन भी लोगों को जोड़ता है. अब मुझे लगा जब मैं अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू किया, मैं बोला ऐसा है क्या चीज कर सकता हूँ जिसमें मैं लोगों को कुछ दे सकता हूँ. तो देखिए लोगों को देने के लिए आपके पास में एक दो चॉइसेस है. या तो आप पॉलिटिकल लीडर बन जाइए या तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट बनिए. तो मुझे लगा ये दोनों में शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. दिस इज वेयर BNI केम एज अ ब्रिज. ये वो प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस बढ़ाने की मदद करेंगे लोगों के लिए, प्लस एट द सेम टाइम you can give them direction as to how they can grow, and you can connect these people across the state, across the country, and across the globe. So I thought this was one of the best platform to connect people and at the same time help them grow in their business. यही मेरा सिलसिला रहा BNI माने के लिए. So for the people who have joined us and they have heard about, must have heard about BNI, but still I would like to tell you that BNI is a business network international. ये एक ग्रुप है बिजनेस लोगों का जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली है कनेक्टेड, और जहाँ पर सब बिजनेसमैन एक दूसरे को काम देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं काम करने में, एंड वी ग्रो. एंड मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम द सर इन डिटेल विद माय. अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने कलकत्ता से स्टार्ट किया है इसको, तो व्हाट मेड यू मेक कलकत्ता द रीजन 1? देखिए मैं समाओ है ना कलकत्ता को बहुत प्यार करता हूँ, जरूरत से ज्यादा करता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ नाम में सिटी ऑफ जॉय नहीं है, एक्चुअली मतलब सही में सिटी में जॉय है. हम लोग कई सारे बातें सुनते रहते हैं कलकत्ता के बारे में, बट सच पूछिए कलकत्ता एक ऐसा सिटी है, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको अपनापन मिलता हो. देखिए किस प्रांत में चैलेंजेस नहीं है बताइए ना. हर प्रांत में अलग अलग उनकी मतलब चैलेंजेस है, अलग अलग बेनिफिट्स है. बट वेस्ट बंगाल हमारा जो कल्चर है यहाँ पर, ये बहुत अपनापन वाला कल्चर है. और लेकिन क्या है, अपनापन के साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग बहुत ऊंचा ख्वाहिश रखने वाले इंसान नहीं है. हमारा एस्पिरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, हम थोड़े में ही खुश हो जाते हैं. ओके,
और कहीं ना कहीं ये थोड़े में खुश होने के कारण हमारे में लेथार्जी आ जाती है, और क्योंकि हमारे में लेथार्जी आ जाती है तो हमें है ना लोग मुड़कर नहीं देखते हैं, और किसी भी जगह में किसी भी फोरम में बात होती है तो उनको लगता है भैया यहाँ के लोग में थोड़ा एनर्जी नहीं रहता है। ये चीज मुझे पसंद नहीं आता है, और ये चीज मुझे बहुत चुभता है, और ये चीज मेरे जहन में 20 साल से जब से मैं काम शुरू किया हूँ कि मैं इस शहर में जब तक इस शहर के लिए काम करूंगा इसको हमेशा ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। और शायद वही मकसद था मेरे को जब BNI में मैं आया। मैं बोला अगर सो आई ऑलवेज यूज दिस टर्म, ऑलवेज यूज दिस वर्ड, you want the world to turn their head towards you, then you have to do something different, or else पीछे खड़े रहिए और लोगों के लिए ताली बजाइए। मुझे लोगों के लिए ताली बजाना अच्छा नहीं लगता, अप्रिसिएशन के लिए ताली बजाता हूँ, लेकिन जहां कंपटीशन का मनोभाव आता है मैं चाहता हूं लोग मेरे लिए ताली बजाए, मेरे प्रांत के लिए ताली बजाए, मेरे रीजन के लिए ताली बजाए, मेरे लोगों के लिए ताली बजाए। एंड दैट इज द इंटेंट बाय व्हिच आई वर्क, एंड दैट इज द रीजन व्हेन आई सेड, लोग बोलते हैं कलकत्ता में धंधा नहीं होता, वो मैंने ठान लिया लोगों को मुझे दिखाना नहीं है, मुझे खुद को देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस शहर के लिए। एंड दैट इज व्हाट propelled me, energized me, to do something for the city, and that's the reason why BNI is today where we are today. So very nice intention, sir. Very nice. So can you share with us, जैसे हमारे साथ बहुत सारे BNI, non-BNI लोग जुड़े हैं, तो they are all business people, and in this present scenario, they all also must be worried about their business. So I would like you to share with us भी हम लोग BNI कौन से sectors में काम करता है और कैसे कैसे लोग इसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। BNI, it's like it is a larger canvas. दो कंपनी, अगर आप इसका कंपनी का नाम पढ़ें तो वो बोलता है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, एंड हमारा जो फिलोसफी है, इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हेल्प्स पीपल बिजनेस इन देयर बिजनेस ग्रोथ थ्रू स्ट्रक्चर्ड रेफरल मार्केटिंग। सो हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करवाते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। But let me tell you, BNI provides a larger canvas other than business. The primary forte is business, but it provides a larger canvas. When it's a larger canvas, what it means is it enables you to become a better leader, a bigger leader. Because let me tell you, यहाँ पे जैसे मैं कलकत्ता की अगर बात करूँ, हमारे यहाँ पे 1350 टॉप नॉच बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं, और हमारे हर एक चैप्टर में 60 से 65 लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के, you name it, they are there. We have categorized that there are 200 plus types of business who are part of BNI. 200 types. So आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लीजिए, एक कोच ले लीजिए। जस्ट सी अंजू मैडम, आप तो जिस प्रोफेशन में है, that also has a large space. Coaching is there, training is there, HR is there, chartered is there, every function is there, every function is there. So people feel कि मुझे है ना मैन्युफैक्चरिंग वाले को एक मैन्युफैक्चरिंग वाला ही हेल्प कर सकता है। Again it is a myth. Again it is a myth. Because you are looking for connects. So एक एग्जांपल देना चाहूंगा थोड़ा अच्छा क्लैरिटी के लिए। आप अगर मान लीजिए आयरन एंड स्टील में काम करते हैं, you might be looking for a connect with राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट, और आपको लगता होगा कि यहाँ पे एक आयरन एंड स्टील वाला ही आपको कनेक्ट करवा सकता है। गलतफहमी है। आपको शायद पता नहीं होगा, वहां के जो हेड है उनको शायद कोई म्यूचुअल फंड वाला जाकर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कराया हो और उनके साथ में काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब कोई स्टील वाला बोलता है कि भैया मुझे राउरकेला में कनेक्ट करवाइए, जानते हैं कौन खड़ा होता है? एक म्यूचुअल फंड वाला खड़ा होता है कि मैं आपको वहां पे कनेक्ट करवा सकता हूं। So this provides many sectors, many people to come together and provide the necessary connect. Because हमारा ये भी मानना है कि you are preferred when you are referred. True sir. और सर because आप जहां से शुरू होके आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, so I know the road must not be very smooth.
तो बहुत सारी हर्डल्स भी होंगी, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी होंगी इस रास्ते में. तो सो व्हाट यू एनी फ्यू इंसिडेंट्स व्हिच यू कैन शेयर विद अस, दैट किस तरह से वो हर्डल्स को आपने पास किया एंड यू आर वेयर यू आर टुडे. देखिए, हम तो शुरू ही मतलब क्या बताऊं, अगर मैं विलेज में बॉर्न हुआ हूं जहां पे ऐसे इंफ्रा थे, तो शुरुआत तो एडवर्सिटी से हुई है. तो इट्स लाइक हम लोगों को एडवर्सिटी झेलने की क्षमता वहीं से मिल गई हम लोगों को. सो आई वुड से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि इससे बुरा और क्या हो सकता है. जहां पे मान लीजिए अच्छा पानी नहीं मिलता पीने के लिए, मान लीजिए जहां पे अच्छी सड़क नहीं है, अच्छा छत नहीं है, तो वहां से अगर वहां से आप बाहर आते हैं तो हर वो चैलेंज है ना, उसके सामने में बहुत ही छोटा नजर आता है, बहुत ही छोटा नजर आता है. और कई बार तो ऐसा होता है ना, आप जो अकम्प्लिश करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, क्यों कई बार, हर बार ऐसा होता है, जब भी आप कुछ अकम्प्लिश करते हैं ना, तो आपको वो दर्द दिखता नहीं है. मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा. मेरा सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट आप पूछे, पता नहीं, लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी है, पैसा है, नेम है, फेम है, ग्लोरी है, मैं इन सब में जाना भी नहीं चाहता. मेरा अगर आप अचीवमेंट पूछे, और ये अचीवमेंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को फॉलो करना चाहता हूँ इस अचीवमेंट. मैं गांव में पैदा हुआ एक इंसान. हम लोग सब यूएस को एक महान देश मानते हैं. भारत हमारा महान देश है, लेकिन हम यूएस को एक बहुत पावरफुल देश मानते हैं. मैं उस गांव में पढ़कर, उस गांव में पैदा होकर, मैं यूएस में जाकर लोगों को बिजनेस बढ़ाने का तौर तरीका बोलने का 1000 लोगों की भीड़ में बताता हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट. That's really nice. सबसे बड़ा अचीवमेंट. तो आप अगर कुछ लोग जुड़े हैं ना यहाँ पर, आपको लगता है कि देखो बॉस, इनको ये है ना गोल्डन स्कूल में पैदा हुआ है, इनके पास है ना इतने कनेक्ट्स हैं, ये बड़े परिवार से आए हैं, इनका बहुत अच्छा फैला हुआ बिजनेस है. सर, मैडम, आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ. यू हैव टू क्रिएट योर डेस्टिनी. आपको मेहनत करने पड़ेंगे. वन थिंग जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो है मेहनत. द हार्डर यू वर्क, द लकियर यू गेट. Okay, there is a saying, the harder you work, the luckier you get. And also there's a saying that fortune favors the brave, but the element of luck is also necessary. So possibly I was also lucky being born there, and from there to there, not being able to speak any language, Hindi, English. मुझे क और का की मात्रा पता नहीं थी. अगर वहां से यहाँ मैं पहुंचा हूं बिना किसी सहारे के, बिना किसी ट्यूटोरियल के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी गूगल के. You can do it. You just can do it. Okay, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं. If you have a vision for yourself, you would reach it. And do you know who can take you there? Only you yourself. आपके साथ में हमेशा एक इंसान खड़ा रहता है, वो है आप खुद. जब तक आप में मनोबल है ना, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं.